क्वेश्चन। और बेटा क्वेश्चन आपका है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ, compare and contrast the characters of Mr. Lamb and Dairy. Mr. Lamb and Dairy. Compare and contrast the characters of Mr. Lamb and Dairy. इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, तो उसमें बेटा आपसे पूछेंगे, कहेंगे बोथ आर हैंडीकैप्ड, पर बोथ दोनों पीपल का बोथ ऑफ देम हैड डिफरेंट एटीट्यूड्स, तब भी आप यही आंसर लिखोगे। ये वाला आंसर जो आप लिख रहे हो, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाले वर्ड्स हैं वो बहुत जगह काम आ जाएंगे, किसी भी तरीके से काम आ जाएंगे। मिस्टर लैम ने डेरी को जो चेंज किया उसमें भी काम आ जाएंगे। तो आप इसका आंसर जब लिखोगे, जैसा हम लॉन्ग आंसर लिखते हैं डिवाइड करके 4 पार्ट्स में, वैसा ही लिखेंगे। लिखिए, the two characters of Susan Hill, राइटर का नाम SUSANHILL, the two characters of Susan Hill, comma, in on the face of it. The two characters of Susan Hill, comma, in on the face of it, comma, are handicapped, full stop. Mr. Lamb has an artificial leg and Dairy has a burnt face. And Dairy has a burnt face. Full stop. Yet, Y-E-T, yet, comma, फिर भी, yet, comma, their attitudes are poles apart. Yet, comma, their, THEIR, their attitudes are poles apart. Full stop. पोल्स अपार्ट, बिल्कुल नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसे अलग अलग है, इतने दूर हैं दोनों के एटीट्यूड्स। अब बेटा एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना शुरू करो। मिस्टर लैम्ब इज ऑप्टिमिस्ट। मिस्टर लैम्ब इज ऑप्टिमिस्ट, full stop. He is interested whatever life gives him, full stop. It can be teasing of the children, or growing of weeds, जंगली पौधे जो उगाते हैं, full stop. Dairy has pessimistic
pessimistic attitude. Dairy has pessimistic attitude. PESSIMISTIC. Pessimistic attitude. Full stop. He is always complaining. Full stop. He hates not only other people, but also himself. फुल स्टॉप. बेटा इस पैराग्राफ में ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्टिक ये दोनों वर्ड्स अंडरलाइन होंगे. एक लाइन छोड़ो, थर्ड पैराग्राफ लिखो. मिस्टर लैम्ब इज an extrovert. Mr. Lamb is an extrovert. EXTROVERT. Full stop. He welcomes everyone to his garden. Full stop. He loves to ask questions. And talks a lot. Full stop. In contrast to this, comma, dairy is a psychological wreck. PSYCHOLOGICAL. Psychological wreck. WRECK. Psychological wreck. फुल स्टॉप. बेटा साइकोलॉजिकली ब्रोकन जिसे आप बोल सकते हो, mentally broken. Full stop. He is logged in his own world and does not like to meet anyone. Full stop. He is wallowing. WALLOWING. Wallowing का मतलब रोना. He is wallowing in self pity. बेटा इसमें अंडरलाइन करो एक्सट्रोवर्ट और साइकोलॉजिकल रैक, दोनों का कॉन्ट्रास्ट आ गया. एक लाइन छोड़ो, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो. मिस्टर लैम्ब इज वाइवेशियस. VIVACIOUS. वाइवेशियस. बेटा वाइवेशियस के लिए ब्रैकेट में लिख लो, इसका मीनिंग होता है फुल ऑफ एक्टिविटी. फुल स्टॉप. He makes. Ma'am, please repeat this line. हाँ बेटा, Mr. Lamb is vivacious. Vivacious means full of activity. Stop. Beta, he makes
toffees, comma, he makes toffees, comma, jelly on his own, he attends his bees, and keeps the door, बेटा डोर लिख लो या गेट्स लिख लो, keeps the gates of his house open, and keeps the gates of his house open to welcome everyone, full stop. Derry is isolated, full stop. He does not like to be involved in any activity, he feels he should live with all the burnt people, full stop. He has complaints against his mother who kisses him where his face is not burnt, full stop. इस वाले में बेटा दोनों अंडरलाइन करो, वाइवेशियस और आइसोलेटेड, और एक लाइन छोड़ के कंक्लूडिंग लाइन लिखो, और वो है बेटा मीटिंग विथ मिस्टर लैम्ब for some time, comma, impacted Derry a lot, full stop. He discovers the simple joy, in everyday living, full stop. He discovers the simple joys in everyday living, full stop. बस बेटा, सिलेबस हमारा वैसे ऐसा ज्यादा नहीं रह रहा है। उस बैच में मैं करवा रही हूँ द रेड ट्रैप, उसके लेक्चर्स आप ले ही रहे होंगे, और आपके इसमें बेटा अ थिंग ऑफ ब्यूटी स्टार्ट होगा। उसके बाद लास्ट रह जाएगा आपका, आपके बैच में या तो स्टार्ट कराऊंगी मैं बेटा जो इंडिगो है, और दूसरा इवेंट्स ट्राइजो लेवल, तो मोर और लेस जनवरी तक वी विल बी फ्री। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आर्टिकल राइटिंग मैंने करा दिया था पहले भी, मैटर भी लिखवाया हुआ है, बीच में टाइम मिलेगा और लिखवा देंगे।
ये बातें सिर्फ उन बच्चों से हो रही हैं जो पहले से ज्वाइन करे हुए हैं। इसके बाद बेटा हमने लेटर टू एडिटर, जॉब एप्लीकेशन तो अभी अभी लिखा है, नोटिस राइटिंग हुआ था, एडवर्टाइजमेंट हुए थे, इनविटेशंस हुए थे। तो ऑन द होल अगर देखा जाए तो राइटिंग सेक्शन तो हमारा फिर भी हो गया है। हालांकि अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में हम बाद में और बात कर लेंगे। अब ये जो पोएम है बेटा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये इतनी डिफिकल्ट लगती है बच्चों को, बहुत ज्यादा। क्यों लगती है ये तो मुझे नहीं मालूम है, पर हाँ एक चीज जरूर पता है कि ये डिफिकल्ट लगती ही रहेगी। और इसके ऊपर डिपेंड नहीं करना कि मैम एक बार और पढ़ा दीजिए, 2 बार और पढ़ा दीजिए। हालांकि आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप खूब उसको देख सकते हो। पर बेटा इस पोएम का सॉल्यूशन तब मिलेगा तुम्हें जब तुम इसके क्वेश्चंस सॉल्व करोगे। तुम्हें कम से कम, ज्यादा भी नहीं, तो इस पोएम के 50 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, 50 क्वेश्चंस। और सिर्फ वो क्वेश्चंस पढ़ के ये सोच लो कि क्या तुम्हें इसका आंसर आता है, और अगर आंसर नहीं आता होगा तो मुझसे पूछो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी ये वाली नहीं, यहां से ये लिखना था इसमें। ये डिफरेंस है बेटा। पूरा का पूरा आपको समझा देते हैं तो आपको लगता है समझ आ गया, पर जब वो छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कुछ भी नहीं आ रहा होता है, और आपके आंसर्स एक ही जैसे हो रहे होते हैं। इसलिए पूरा ध्यान इस चीज पे लगाओ कि मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके क्वेश्चंस पढ़ने। मार्केट में बेटा सीबीएसई के सैंपल पेपर्स आ चुके हैं, आपके स्कूल्स में भी ऑफलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन पेपर्स एक्सचेंज करो। और बेटा साथ में सीबीएसई के सैंपल पेपर्स जो आए हैं उसमें से क्वेश्चंस देखो अ थिंग ऑफ ब्यूटी के, और आपको जब आप आंसर्स लिख लोगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ जी अब ये पोएम आ गई है। बहुत ब्यूटीफुल पोएम है, और वही है बेटा, शायद या तो हम इतना पढ़ाते हैं इसलिए हमें आसान लगती है, पर जो भी है, पर हाँ आसान है, बहुत अच्छी पोएम है। पोएम का बैकग्राउंड क्या है, तो पहले इसको समझो। और समझने की बात नहीं है, क्वेश्चन भी पूछते हैं इसमें से। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएम है, जॉन कीट्स की पोएम है। और मजे की बात यह है कि ये पूरी पोएम है भी नहीं, जॉन कीट्स ने तो एक बहुत बड़ी पोएम लिखी है जिसका नाम है एंडिमियन, अ पोएटिक रोमांस। वो बेटा इतनी बड़ी पोएम है, पूरी किताब है, उसमें से हमारे सिलेबस में ये थोड़ी सी लाइंस हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो जॉन कीट्स ने जो बुक लिखी है, जो बड़ी सी पोएम लिखी है, उसको बोलते हैं एपिक है। एपिक क्या होता है जानते हैं? एपिक आप जानते हैं क्या होता है? हमारे यहाँ महाभारत, रामायण, ये एपिक्स हैं। ये बेटा गा गा के, इट इज इन द सिंगिंग टोन। तो ऐसे जो महाकाव्य जिसे हिंदी में बोलते हैं, वैसे जॉन कीट्स ने ये एक इतना बड़ा सा एपिक लिखा है। उस एपिक का नाम है अ थिंग ऑफ एंडिमियन, अ पोएटिक रोमांस। एंडिमियन, अ पोएटिक रोमांस। और हमारे सिलेबस में उस एपिक में से ये थोड़ी सी लाइंस दी हुई हैं। सो इफ वी ऑल नो बेटा, जैसे सुंदरकांड का पार्ट होता है, तो सुंदरकांड इज अ पार्ट ऑफ रामायण, द एपिक रामायण में से थोड़ा सा पार्ट है। वैसे ही एंडिमियन, अ पोएटिक रोमांस में से अ थिंग ऑफ ब्यूटी छोटा सा पार्ट है। और वो जो कहानी है एंडिमियन, अ पोएटिक रोमांस, वो कहानी भी सुन लो क्या है। तो बेटा ग्रीक लीजेंड है, ग्रीक की कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि एक बहुत हैंडसम यंग पोएट था जिसका नाम था एंटिमियन। वो एक माउंटेन पे रहता था और वो भेड़ बकरियां चराता था, पोएट्री भी लिखता था।
एक दिन की बात है, एंटीमियन जो है वो बेटा एकदम दोपहर में उसको नींद आ गया, वो सो गया और उसे सपने में गॉडेस मून दिखाई दी। जैसे हम लोग मून को, चांद को देवता बोलते हैं, वो गॉडेस बोलते हैं ग्रीक के लोग। तो बेटा उसने सोचा कि ये जो उसको सपने में दिखाई दिया, वो मून गॉडेस जो दिखाई दी सपने में, वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि वो टोटली अट्रैक्ट हो गया उनकी ब्यूटी से और उसकी नींद खुल गई। और जैसे उसकी नींद खुली तो उसने वंडर, सरप्राइज्ड होकर रहा था वो कि क्या ये वाकई में मून गॉडेस इतनी ब्यूटीफुल है या फिर ये मेरा सपना था। तो उस एंडीमियन ने, उस शेफर्ड ने डिसाइड कर लिया कि उसे जाकर के ढूंढना है, सिंथिया को मिलना है, मून गॉडेस को मिलना है और देखना है। तो बेटा वो जो इतनी बड़ी किताब है हमारे उसमें जॉन कीट्स की, एंडीमियन और पोएटिक रोमांस, उसमें वो ढूंढ रहा है हर जगह गॉडेस मून को। और बेटा ये जो पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये उसी में से ली गई है, इंटरप्रिटेशन है। पोएट कहना चाहता है जैसे एंडीमियन वो थिंग ऑफ ब्यूटी, वो ढूंढ रहा है गॉडेस मून को, वैसे ही हम सब इंसान भी एंडीमियन के जैसे हैं। हम भी अपनी जिंदगी में अ थिंग ऑफ ब्यूटी ढूंढते हैं। पैरेलल है बेटा ये पोयम, पैरेलल पोयम है। पैरेलल पोयम का मतलब होता है ऊपर से इसका मीनिंग कुछ और है और हिडन मीनिंग कुछ और है। क्लास 9th में तुम लोगों ने एक पोयम पढ़ी थी ब्रूक, तो वो रिवर की जर्नी थी पर पैरेललिज्म था उसमें। और बेटा पैरेललिज्म का मतलब था, हिडन मीनिंग ये था जैसे रिवर की जर्नी होती है ऐसे इंसान की भी लाइफ की जर्नी होती है। उसी तरीके से इसमें जैसे एंडीमियन ढूंढ रहा है गॉडेस मून को, वैसे ही हम सब इंसान वी आर लुकिंग फॉर एनी शेप ऑफ ब्यूटी। ये बेटा इसमें पैरेललिज्म है। अब ये जो हमने जितना इंट्रोडक्शन, ये जितना बैकग्राउंड पढ़ा है, इसको तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। जो नोट्स मैंने भेजे हैं वो तो प्रिंट आउट बाद में करा लेना, अभी पहले इसमें से देखो, बुक में से जो इंट्रोडक्शन दिया है उसमें से ये सारी बातें लिखी, और उसके बाद फिर मैं एक और बात बताऊंगी एंड देन वी विल स्टार्ट विद द पोएम। जॉन कीट्स वाज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट. Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है। रोमांस का मीनिंग लिटरेचर में नेचर से ब्यूटी के लिए आता है। Keats beta secret his power to sway and delight the readers lie primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language. बिल्कुल important नहीं है, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। The following is an excerpt. Excerpt मतलब पैसेज। ये जो दिया है हमारे सिलेबस में, ये एक पैसेज है फ्रॉम हिज पोयम एंटीमियन अ पोएटिक रोमांस। जॉन कीट्स की पोयम थी एंटीमियन अ पोएटिक रोमांस, उसमें से ये छोटा सा स्टैंजा हमारे सिलेबस में है। एंटीमियन कौन था? द पोयम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लीजेंड, लीजेंड मतलब स्टोरी, in which Endymion, a beautiful young shepherd and poet, भेड़ बकरियों को चराने वाला, who lived on Mount Letmos, वो एक माउंटेन पे रहता था, उस माउंटेन का नाम था लेटमॉस। He had a vision of Cynthia. बेटा विजन का मतलब ड्रीम, उसे सपना दिखाई दिया सिंथिया का। सिंथिया कौन? द मून गॉडेस। द एन्चेंटेड यूथ, एन्चेंटेड मतलब कंप्लीटली अट्रैक्टेड, पूरी तरीके से mesmerized हो गया, खो गया बिल्कुल।
रिजॉल्व्ड का मतलब डिसाइड करता है, टू सीक हर आउट, मून गॉडेस को ढूंढ निकालेगा, उसने रिजॉल्व कर लिया, सोच लिया। एंड सो वॉन्डर्ड अवे, और ढूंढ रहा है, थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। और बेटा वो जो ढूंढते हुए गाना गा रहा है वो है हमारी पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ पैरेलल पोएम। इसमें बेटा एक और खास चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है, इतनी इंपॉर्टेंट कि पूछो मत। अ थिंग ऑफ ब्यूटी is not at all referred to the physical beauty. The poet says a thing of beauty is never physical because physical beauty is short lived, थोड़े टाइम की होती है। According to John Keats, he is talking about three types of beauty. A thing of beauty has nothing to do with physical body. A thing of beauty means beta natural beauty, beauty of nature. A thing of beauty means the beauty of selfless action. A thing of beauty means divine beauty, spiritual beauty जिसे बोलते हैं। तो a thing of beauty is not related to physical beauty. A thing of beauty means a beauty which is in nature, a beauty which is in selfless action. ऐसा काम करना जिसमें अपने बारे में नहीं, सबके बारे में सोचना, वो होती है थिंग ऑफ ब्यूटी। और बेटा थिंग ऑफ ब्यूटी तीसरे का मतलब है डिवाइन ब्यूटी, स्पिरिचुअल ब्यूटी, हमारे गॉड की ब्यूटी, उसकी बात हो रही है। और ये कैसे पॉसिबल है, तो देखो तो जरा फर्स्ट लाइन से ही पता चल जाएगा कौन सी ब्यूटी की वो बात कर रहा है। बेटा यहाँ पे ये हमसे कहते हैं सबसे पहले, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। मैं इसको पूरी अच्छी तरीके से समझाऊंगी, अभी वर्ड 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 बाय वर्ड बता रही हूँ। फॉर एवर का मतलब लिखो परमानेंट, फॉर एवर का मतलब लिखो एवर लास्टिंग, फॉर एवर का मतलब लिखो इटर्नल, ETERNAL, इटर्नल। और बेटा इसमें अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इसका मतलब है अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स जॉय परमानेंटली। फिजिकल ब्यूटी तो ऐसी नहीं होती, वो तो परमानेंट नहीं रहती है, इसलिए ही इज टॉकिंग अबाउट ब्यूटी इन नेचर। बेटा सेकेंड लाइन में क्या लिखा है, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। बेटा इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस का मतलब लिखो, इसका मतलब ये होता है वी रीलिव द एक्सपीरियंस, वी रीलिव द एक्सपीरियंस, वी गेट मल्टीफोल्ड जॉय, वी गेट मल्टीफोल्ड जॉय। हम वो ब्यूटीफुल चीज जो होती है, उस ब्यूटीफुल चीज को बार बार रीलिव करते हैं अपने ही थॉट्स में, और हमें मल्टीफोल्ड कई गुना जॉय मिलता है। तो बेटा अगर ये हमसे बोलते हैं इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस का क्या मतलब हुआ, तो आप बोलेंगे वी रीलिव द एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटी, एंड एवरी टाइम वी रीलिव द एक्सपीरियंस वी गेट द मल्टीफोल्ड जॉय। It will never pass into nothingness. It will never pass into nothingness. बेटा इसका मतलब लिखोगे टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस कैन नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन अ थिंग ऑफ ब्यूटी। चाहे कितना टाइम निकल जाए, चाहे कितना डिस्टेंस हो जाए, पर अ थिंग ऑफ ब्यूटी never fades away, never dies. ये जो लाइन है बेटा, it will never pass into nothingness, इस लाइन का मतलब है टाइम एंड बेटा डिस्टेंस do not have any effect on a thing of beauty.
A thing of beauty will never fade and it will never die. ये इसका मतलब। तो बेटा ये पूरी जो 3 लाइन है वो एक साथ मिली हुई है। A thing of beauty is a joy forever. क्यों? क्योंकि we relive the experience. We relive the experience, we get multifold joy. We get multifold joy, and time and distance do not have any effect on it. It never dies and it never fades. So it is always in our mind. और इसीलिए हमेशा जॉय मिलता रहता है। दिस इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इज अ जॉय फॉर एवर। अब बेटा आज की जो लाइंस बस लास्ट 2 पढ़ के फिर खत्म करेंगे, पर मैं दोबारा से फिर नेक्स्ट टर्न पे जब हम मिलेंगे तो मैं दोबारा से इसको बोलूंगी और नोट्स भी हो जाएंगे, तब तक तो हम उसकी भी बात करेंगे। एंड इट इज लाइक, बेटा 3 चीजें बोलेगा पोएट, देखो। But will keep a bower quiet for us. But will keep a bower quiet for us. बेटा bower का मतलब लिखो a shady place. A shady place. और इस लाइन का मतलब समझो पहले। बेटा थिंग ऑफ ब्यूटी कंपैरिजन कर रहे हैं। A thing of beauty like a shady place. जैसे हम छाया में जाते हैं और हमें बहुत कंफर्ट मिल जाता है, क्वाइट बेटा सीरीन एक्सपीरियंस, पीसफुल एक्सपीरियंस होता है छाया में बैठने के बाद, वैसा ही पीसफुल एक्सपीरियंस होता है हमारा रेस्टलेस माइंड पीसफुल हो जाता है। अ बावर क्वाइट फॉर अस का मतलब अ मैन गेट्स पीस बाय सिटिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री। In the same way, when we see a thing of beauty, we feel very serene, very peaceful, very calm. Comparison कर रहे हैं बेटा। उसके बाद में आप आगे आ जाइए तो बेटा इसमें लिखा हुआ है a sleep full of sweet dreams. A sleep full of sweet dreams. As a man gets refreshed after sleeping, in the same way, after looking at a thing of beauty, we feel refreshed. We feel complete. देखो बेटा सोते समय हम अपने आप में होते हैं, सारे वर्ल्ड से कांटेक्ट हमारा छूट जाता है, और जब हम सो के उठते हैं वी फील सो फ्रेश, सो डिलाइटेड। इन द सेम वे जब थिंग ऑफ ब्यूटी को हम देखते हैं तो हमें वही फ्रेशनेस फील होती है। जैसे इन्होंने पहले वाले एग्जाम्पल में क्या बताया, जैसे आप शेडी प्लेस में बैठते हो और जैसे आपका सारा पीसफुल एक्सपीरियंस होता है, रेस्टलेसनेस खत्म हो जाती है, वैसे ही सोने के बाद आपको रिफ्रेशनेस आ जाती है बेटा, आपकी पूरी की पूरी फैकल्टीज अलर्ट हो जाती है, वैसे थिंग ऑफ ब्यूटी का एक्सपीरियंस होता है। इसके बाद में लिखा है एंड हेल्थ। अब हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरा बेटा सुन लो। हेल्थ का मतलब हो गया बेटा, थिंग ऑफ ब्यूटी इज न्यूट्रिशन फॉर हेल्दी माइंड। हेल्दी माइंड, हेल्दी माइंड के लिए, हेल्थ का मतलब हेल्दी माइंड के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ न्यूट्रिशन। वो न्यूट्रिशन है हमारे लिए। और बेटा लास्ट में है क्वाइट ब्रीदिंग। बेटा क्वाइट ब्रीदिंग का मतलब लिखिएगा ऑल द डिस्टर्बेंसेस of the mind goes away and a person just takes the breath, the light breathing that he feels. तो बेटा अगर इसको इन शॉर्ट आप समझना चाहते हो तो जो लाइंस हमने आज पढ़ी हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। थिंग ऑफ ब्यूटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और थिंग ऑफ ब्यूटी का कंपैरिजन किस किस से हुआ है। तो जब आप थिंग ऑफ ब्यूटी की बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स में तुम पढ़ोगे इट गिव्स जॉय परमानेंटली। व्हाई इट गिव्स जॉय परमानेंटली? बिकॉज वी रीलिव द एक्सपीरियंस। हम बार बार उस एक्सपीरियंस को रीलिव करते हैं। इट गिव्स मल्टीफोल्ड जॉय।
फिर बेटा उसके बाद हमने दूसरे लाइन में पढ़ा लवली ने बेटा इंक्रीजेस, तो एवरी टाइम वी थिंक ऑफ इट वी फील जॉयफुल. टाइम एंड डिस्टेंस हैव नो इफेक्ट ऑन इट, और साथ में इट नेवर डाइज आउट, इट नेवर फेड्स अवे. इसके बाद कंपैरिजन किया है, तो कंपैरिजन किस किस से किया है? शेडी प्लेस से किया है. फिर बेटा आपसे बात करते हुए पोएट कहता है ये हमारे माइंड के लिए न्यूट्रिशन है. और बेटा उसके बाद में ये हमसे बोलता है जैसे स्लीप, अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, रिफ्रेश करने वाली वैसे है. और बेटा हेल्दी क्वाइट ब्रीदिंग है, सारा टर्ब्यूलेंस खत्म हो जाता है. अब इसको जरा ऐसे मत समझना, इसको बेटा आप खुद ही ऐसे समझो जैसे हम किसी हिल स्टेशन पे घूमने के लिए गए और वहां पे हम कोई बहुत ब्यूटीफुल नेचर का नजारा देख के आते हैं, झरना लेट सपोज देख के आए, तो आप खुद ही बताओ हम रीलिव करते हैं ना बार बार, वो हमारे दिमाग से मिटता नहीं है. हम बोलते बहुत सुंदर जगह थी, बहुत सुंदर नजारा था, ऐसे करके बेटा हम बात कर रहे होते. और फिर वो चाहे कितना समय गुजर जाए, कितने दूर हम चले जाएं, पर वो हमारे माइंड पे मार्क बन जाता है जो कभी मिटता नहीं है, और हमारा जॉय इंक्रीज होता है. दिस इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी. इसको कंटिन्यू करूंगी. वो बेटा फोटो स्टेट करवा लेना, उसको प्रिंट आउट निकाल लेना.